जो सच में थोड़ा बहुत साधना करना चाहते हैं, साधन के बारे में जानना चाहते हैं, तत्वों को जानना चाहते हैं, विषय को जानना चाहते हैं, विषय के भाव को जानना चाहते हैं, भाव से भक्ति की उत्पत्ति होते हैं, भाव से ज्ञान का उत्पत्ति होती है। फिर जब उस शब्द को उससे आप उनको परिचय, उनका स्वरूप पाएंगे, जो मंत्र होगा उसको देवी देवता को वो अपना परिचय भी देते हैं, ऐसे बात नहीं, वो दर्शन देते हैं। तो मन कितना आनंदित हो जाता है कि मैंने अपने विद्या को संपूर्ण आयात किया है, विद्या को हमने आयात किया है। विद्या जब ठीक से साधन किया जाता है वो आपका आयत में आ जाता है, आपका ग्रिप में आ जाता है, आपका हृदय में आ जाता है। तो साधन तभी सिद्ध होता है जब हम लोग विद्या को अपने अंदर एकदम ऐसे ऐसे हृदय में ग्रिप कर लेंगे, सब उनको एकदम से वो लगा लेंगे, तब जाके वो जो विद्या होते हैं वो हमारे अधीन में आते हैं। और विद्या हमारा हर तरह से हमको आशीर्वाद देते हैं, हम पे करुणा करता है और हर कष्ट को हमारा दूर करते हैं। तो कोई भी एक भी शब्द जो हम बोलते हैं उन शब्द को ढंग से बोले, सब तो ये जो आप लोगों को कल मैंने बार बार बोला था, आज दोबारा बोल रही हूँ कि आपको पास अभी जो मातृका, 4 मातृका का फोटो गया है, 4 मातृका आपको अवेलेबल है मूलधार चक्र में जो प्रधान देवियाँ है। तो उनको आप उनको जैसे लगता वो शब्द आ रहे हैं तो वो शब्द तब आपके लिए मंत्र बन जाएगा, और मंत्र आपके लिए अमृत में वो सिद्धियाँ बन जाता है, ऐसा नहीं है। तो एक तो मातृका को पहचानना है, उन शब्दों को जो है वर्णों को ठीक से उच्चारण करना है। आप जो लोग जानते हो उनको जानिए। मैंने अभी बोले दंते बाঙালি তোমাদের বিশেষ করে বললাম তালিবেশ, তালুতে জীবটা যাবে তালিবেশ, দন্তেশ, দন্ত বলে দিত না, যে শব্দ দাঁত দিয়ে বলা হয় দন্তেশ, মূর্ধন্যেশ, মূর্ধা, মূর্ধন্যেশ মূর্ধা দিয়ে দন্তেন্না। তো মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় দন্তেন্নওয়ালা মন্ত্র আমরা বলি না, দন্তেন্ন মন্ত্র নাপুঙ্খ হয়ে যায়, ও মন্ত্রে জপ করলে কোনো লাভ নেই। इसलिए नमः, नम न म ह বলে দেওয়া হয়, নমঃ এরকম করে। তো জানবে আমরা বাঙালিরা সবেতে একটু নকার বলি বেশি সংস্কৃতে, তো নকার বললে বাদে মন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য মন্ত্র যার শেষ যা লেখা থাকে তাকে ঠিক করে উচ্চারণ করতে হয়। তো মূলাধার চক্রে তোমরা কি দেখবে 4 মাতৃকা, 4 মাতৃকাদের চিনতে শেখো, তারা কেমনি করে বসে আছে, কার ওপরে বসে আছে, তারা হাতে কি দেখাচ্ছে, কার 2 হাত 4 হাত 6 হাত তেমনি আছে, তার চেহারায় কি আছে, সে কি বর্ণের কাপড় পরে আছে। যখন আমরা ধ্যান সাধনাতে ধ্যান করবো, এক একটা পঙ্ক্তিতে ঢুকছি যখন, তখন দেখবো ওই মাতৃকা এখানে বসে আছে, তার এরকম দেখতে 1 মিনিটে তো তার ধ্যান হয়ে যাচ্ছে, সে এরকম দেখতে তার 1 মিনিটে ধ্যান। তখন আমরা 4 বার বলতে, 4 গুনতে গুনতে যেতে, 4-এর মধ্যে তাদের চেহারাটাও চিন্তা করতে হবে, মনে করে নাও। তো 4-এর মধ্যে 4 জন মাতৃকাকে দেখতে হবে, জানতে হবে, এবং তাদের আলাদা করে যখন আমরা জপ করব তখন সেই ভাবগুলো, সেই আশীর্বাদগুলো তখন তারা আমাদের দেবে। তো আগে আমরা মাতৃকাদের চিনতে হয়, সত্যি তাই আমরা যখন আগে মাকে চিনি তবে না অন্য কাউ সংসারকে চিনি। সেই জন্য মাতৃকা বর্ণ থেকে সংসারে বড় কিছু নেই। যত মন্ত্র তন্ত্র যন্ত্র যা আছে, ভালো শব্দ মন্দ শব্দ, গালি বলো চাहे প্রার্থনা বলো চাहे পূজা বলো, সবই তো শব্দ দিয়ে। শব্দ মাতৃকা, এদের বর্ণ মাতৃকা বলা হয়। এদের জানা চেনা ভীষণভাবে দরকার। তো 4 মাতৃকাকে তোমরা চিনতে শেখো। 4টে পাতার মধ্যে 4টে মাতৃকা আছে। ওদের একটু তোমাদের ফোনের মধ্যে একটু বড় বড় করে দেখবে, আর দেখে মাথার মধ্যে তাদের ছবিটা একদম বসিয়ে নেবে, যেন একদম ফটোর মতন বসে যায়। যখন তুমি সেই মাতৃকাতে প্রবেশ করবে তখন সেই শব্দকে যখন উচ্চারণ করবে, সেই জন্য তোমার মধ্যে এনগ্রেভ হয়ে যায়, তোমার মধ্যে যেন চেপে যায়, তখন তারা তোমার প্রতি কৃপা করবে। যেমন আমরা যেমন কোনো সময় ছোটোবেলার কথা মনে করি, আমার মা এমন ছিল, ফট করে তোমার আমাদের সামনে মায়ের ফটো, বাবার ফটো, ভাই বোনদের ফটো, বন্ধু বান্ধবের ফটো আসে। এখানেও ঠিক, যখন আমরা ধ্যানেতে যাব, যেই তাদের বর্ণ মধ্যে ঢুকবো, তাদের এক একজনকে বর্ণ জপ করতে করতে যাবো, ওগুলো বর্ণমালা।
শব্দমালা, সেই তাদের সাথে সাথে তাদের চেহারাটা আমাদের চোখের সামনে আসা চাই। আর মধ্যে কি আছেন, আধার চক্রের মধ্যে আছে ব্রহ্মা, তিনিও রুদ্র। কুণ্ডলিনীর শক্তির মধ্যে কোনো দেবতা নেই, সব কিছু সবই শিবময়, সবই রুদ্র। রুদ্র ওখানে যে ব্রহ্মা তিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই সৃষ্টিরূপে রুদ্র। তার ডাকিনী শক্তি, সেই শিবের শক্তি পার্বতী, তার সাথে এখন ডাকিনী রূপে রয়েছে। ডাকিনী অর্থাৎ সরস্বতী। দেখবে ওখানে শ্বেতবর্ণ কাপড় পরে রয়েছে। সমস্ত ফটোগুলোকে বড় বড় করে দেখবে আর তাদের চিনতে চেষ্টা করবে। আর ইন্দ্রর 6 সুরওয়ালা হাতি আছে, আর সেখানে ইন্দ্র আছে। আর গণপতি বাবা আছেন, যে হলুদ কাপড় পরে আছে, তিনি সুন্দর বসে আছেন এরকম এইভাবে। হ্যাঁ, আর একদম মধ্যেখানে ট্রায়াঙ্গেল আছে, লাল একটা ত্রিকোণ আছে। তার মধ্যে যে আমাদের গুরু পরম্পরাতে যে আমাদের আছে, শিবকেই অমৃতকুণ্ড বলি আমরা। এই জন্য যে নাদলিঙ্গ আছে, তার মধ্যে 3 প্যাচ নিয়ে তো সার্পেন্ট পাওয়ার যিনি কুণ্ডলিনী মাতা, সে জড়িয়ে চেপে বসে রয়েছে। তার উপরে রয়েছে মহামায়া, মহাপ্রকৃতি, যাকে আমরা চিনতে জানতে পারি না, তার স্বরূপ চিনি না, অথচ তিনি মহামায়া, মহাপ্রকৃতি, তিনি ওখানে বসে রয়েছেন। এটা সনাতন ধর্ম মতে, যে আমরা তাদের কাছ থেকে, ওইখান থেকে আমরা যখন নিচে মূলাধারে যাই, আর তারা উপরে থাকে, সেই মূলাধার দিয়ে আমরা সেই কুম্ভ থেকে উপর দিকে যখন যাচ্ছি, তখন আমাদের এই সবাইকে প্রণাম করতে হয়, আর সবাইকে চিনতে হয় তারা কেমন দেখতে। এই জন্য ফটোগুলো বড় বড় করে নিয়ে দেখে তাদের চিনবে আর তাদের নামটা জানবে, ঠিক আছে। আর একটা যে আমাদের যে পরম্পরাতে আছে, সেটা বড়গুলোর মধ্যে, চক্রের মধ্যে আছে কি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। স্বয়ম্ভু লিঙ্গই সেই কুম্ভ মনে করা হয়। শিবই সৃষ্টি, তিনি বিষ, তিনি অমৃত, আর তিনি সব কিছু। তার থেকে সৃষ্টি আরম্ভিক, তার থেকে সৃষ্টি, সেখানে তিনি কালপুরুষ বলে, ঠিক আছে। এই আমি বাংলায় এই জন্য বলছি, এবং বারে বারে তোমরা বলো যে আমরা বুঝতে পারি না, এই জন্য বাংলায় তোমাদের বলে दिलाम, আমি हिंदीতেও বলে दिलाम। जो मैंने बांग्ला में बोला कुछ कुछ तो आप लोगों को भी समझ आया, क्योंकि आप लोग यहाँ मैं क्लास कर रहे हो, इंग्लिश वाले को थोड़ा मैं कोशिश करूँगी इंग्लिश में लिटरेचर थोड़ा थोड़ा भेजने का। कुछ लोगों ने जो एकदम ही हिंदी भी नहीं जानता, बांग्ला भी नहीं जानते, ये 3 भाषा में टैकल करना मुश्किल है, एक बात लंबा हो जाएगा, रिपीटेड हो जाता है। तो फिर भी मैं जैसा भी बोला, आप लोगों ने भी समझा, बार बार एक ही बात कह रहे हो। मूल में जो त्रिकोण है, त्रिकोण में स्वयंभू लिंग, जो हमारा गुरु परंपरा, सूर्य परंपरा में हम शिव को ही सब कुछ मानते हैं कि जैसे रुद्र कुंडलिनी चक्र में रुद्र ही सब कुछ है, यहाँ पर भी जो है कोई वही नाद लिंग, जो एकदम ऊपर आखिरी में भी नाद लिंग है, जहाँ हम ओंकार है, चंद्र बिंदु है, बिंदु है, उसके ऊपर नाद ब्रह्म, उसका जहाँ पर हम लोग निरलंबोपुरी बोलते हैं, जहाँ कई हजारों साल में, कई करोड़ों में एक साधक जो जाते हैं वहाँ पर, और वो लोग संसार को कुछ देने के लिए आते हैं, करके जाते हैं। तो निरलंबोपुरी जहाँ साधक रहते हैं, तो साधक का कोई अवस्था नहीं होता, वो अपने को नहीं जानते कि वो भूखा है, वो नहीं जानते वो कपड़ा पहना हो, वो नहीं जानते संसार है, कुछ नहीं जानते, कोई बोध नहीं होता, निरलंबो एकदम हो जाए, उन्मनी अवस्था में रहते हैं। जैसे हमारे दादा गुरु लोग थे और लोग थे, तो एकदम उन्मनी अवस्था होता है। उनको विष दे दो पी जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा, उन्हें अमृत दे दो पी जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। तो वो एकदम अलग अवस्था में चले जाते हैं, जो संसार के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। वो निरालंबोपुरी, जो नाद ब्रह्म, जहाँ पर नाद लिंग रहता, एकदम नीचे मूलाधार में नाद लिंग, ऊपर यही इसी को कुंभ बनता है, जिसके अंदर अमृत रहता है। खींच के ले जाके वहाँ तक जाना, और वहाँ से फिर आते हुए हम लोग ललना में इसको टपकाना, जिससे साधक पूरी हो जाता है। और ललना में जो टपकने के बाद महाप्रकृति, वो भुजुंगी जो ऊपर आती है, सरपेंट पावर, वो और खुद हम तीनों वहाँ पर ग्रहण करके फिर नीचे की तरफ जाते हैं, जिनको अमृत ऊपर आके टपकते तब। समझ गया? ये कठिन सब्जेक्ट है, कुंडलिनी सब्जेक्ट दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट है, विषय है। इसके बारे में आज तक संपूर्ण कोई किसी को देते नहीं, या सब कोई ले नहीं सकते। हम बोल भी सकते तो आप ले नहीं सकते। ये तो इसका यही नियम है, जिसको संस्कार लेके आया, जिसको जन्मों का संस्कार लेके आया है, वो कुछ प्राप्ति करते हैं।
उनको कुछ मिलते हैं, उनको अच्छा लगता है। बाकी लोग तो फिर बाला ऐसा करके रोड तारी क्या है बकवास है बोल के चल पड़ेंगे, क्योंकि समझ आते नहीं, बहुत कठिन सब्जेक्ट है। तो मूलाधार से जब लोग हम साधना शुरू करेंगे, इसलिए हम लोग 16, 64, 32 में जा रहे हैं कि उसी में अंक में हम लोग अंदर जा सकते हैं, ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग उसका अंदर जो प्रवेश करेंगे, जब उस अवस्था में साधना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके लिए अभी से हमको कल एक नहीं पूरा वहाँ ऊपर तक के सब चक्रों का कौन देवता, कौन क्या है, कौन मात्रिका है, सबको जानना और पहचानना है। तब जाके आप साधना में पूर्ति कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बच्चे, बहुत टाइम लग जाएंगे। क्योंकि वो श्लोक गा गा के करने में वो 2-4 जन्म भी पूरा नहीं होता है, वो कहने की बात हो जाता है। फिर 1 मिनट में आंख बंद करोगे वो आपको सामने आना चाहिए, वही साधना तो तुरंत होने वाला होता है। ठीक है, ये चक्र का आप लोग ध्यान करो, रोज उसको बैठ के सुबह शाम देखो, एक एक करके पहचानो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जैसे हम आप लोग कोई अपने होता है, उसको कहीं भी फोटो दिखा रहे हो तो वो है बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसी उन मातृकाओं को आप लोगों को पहचानना है। प्रत्येक चक्र में जितना होगा, जितना मातृका है, 56 जो मातृका में से तो बहुत कुछ आजकल कम हो गया। जो भी हमारे पास है, जितनी है आज तक उपलब्धियां आप कर सकते हो, उस सब को हम आपको देंगे ताकि आप लोगों को विद्या पूर्ण हो। और अभी हम लोग रोज जरूर आपको कह रखे हैं, जो अपने आप जब करोगे वो 4, 16, 8 में ही प्राणायाम करो, ताकि उसमें भी आप इजी होते जाओगे। कि उसके बाद हम उसको दिल के धड़कन के साथ करेंगे। जब प्राणायाम दिल के धड़कन के साथ करेंगे तभी ना हम लोगों को कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, वो टाइम लगता है। तो आज हम हाथ गिन के कर रहे हैं, पल से कर रहे हो, सेकेंड से कर रहे हो, तो आगे चल के हम अपने ब्रीथ को, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, हार्ट हमारा ब्रीथ कर रहे हैं, हार्ट जो ऐसा कर रहे हैं, हार्ट की काउंटिंग से हम लोग प्राणायाम करेंगे। वही प्राणायाम जो जीवन में हमें कुछ दे सकता है। तो पहले 4, 16, 8 को एकदम स्मूथ कर लो। वो 4, 16, 8 से भी 4 सेकंड में लेंगे धड़कन, 4 धड़कन में लेंगे, 16 धड़कन में रुकेंगे और 8 धड़कन में निकालेंगे। ऐसा करते करते इसी धड़कन के साथ हम लोग 16, 64, 32 में भी जाएंगे। देखना तब का साधना क्या मजा आता है। खाली बोल रही हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन करना है आपको। 4, 16 को स्मूथ करो पहला। अगर एक भी रेशो को आप एकदम वो कर लेते हो, सरगम कर लेते हो, एक बार हम लोग सरगम को सीख लेंगे तो सारा सुर को निकाल लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप जो कर सकते हो उतना करो, जोर से मत करो, जबरदस्ती मत करो, आनंद से और प्रेम से करो, वो काम बहुत लंबा चलेगा। 4, 16, 8 को रोज घर में 1 टाइम 2 टाइम जो भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करो जब बैठे रहते हो। तो अब आज हम लोग वो करेंगे, प्राणायाम करेंगे। आज कोशिश करो 56 जाने का। लेकिन इसमें मैंने कई लोगों ने बोला कोई 20 गया, 25 गया, 30 में कहीं चला गया, कोई 40 तक गया, 45 तक कल बहुत लोगों ने कम किया, 50 तक तो नहीं जा सका। फिर भी कोशिश करते, नहीं तो आज 50 ही करते थे। ठीक है, 50, 16 और 50 करते हैं आज। तो थोड़ा ज़्यादा करेंगे, कल 5 ही कर पाए तो समय नहीं होता। देखिए 5 बार करके साधना करते करते 1 घंटा 20 मिनट हो जाता है। कितना भी मैं काटने का कोशिश करता हूँ, समय कम नहीं लगता। थोड़ा बहुत बोलना भी जरूरी है। सीधा जाके एकदम हाँकने लगो घोड़ा, ऐसा थोड़ी ना चलता। घोड़ा को भी चना खिलाना पड़ता है। मन तो घोड़ा ही है हम लोगों का, जब चबाते हैं तब उसका आनंद आता है, तब वो दौड़ते हैं। मन तो ऐसे ही होता है ना। तो चलिए हम लोग प्राणायाम करते हैं। बैठिए, शरीर को ढीला छोड़िए, अपने आसन में बैठिए और समझिए कि मैं अपने गुरु का एकदम गोद में बैठा हूँ। गुरु हमें रक्षा करने के लिए सर्वदा है। गुरु ही हमें शक्ति दे रहे जिनसे हम उस महाशक्ति को जानने का और पहचानने का कोशिश कर रहे हैं। हमेशा शरणागति भाव रखना। हम जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमसे बड़ा कोई नहीं, कभी मत कहना। ना हमसे बड़ा कोई है हो सकता है। हम लोग जब आप हमेशा सोचो कि मैं तो शरणागत हूँ और मैं आपका शरण में हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अपने को कभी बड़ा मत नहीं समझना, अहंकार नहीं करना। जितना भी नहीं होगा उतनी अच्छा है। ऐसी साधना में जितना कोमल रहोगे, जितना नरम रहोगे, उतना अच्छा प्राणायाम इत्यादि होता है।
शुरू करते हैं। तैयार हो? चलो अपने मुद्रा बना लो। ये मुद्रा है आपका, ये से दाया, ये से बाया, ये मध्यम, ऐसा पकड़ के प्राणायाम करो। अब हम लोग आज हम लोग दाएं से लेते हैं। पहला दाएं से शुरू करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट से लो आप, सांस लो। एक, फिर से लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अच्छा, अब करके फिर बाएं से लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। গরম করে দিয়েছো, একটু বাড়িয়ে দাও। 1 2 3। अच्छा, अब दाएं से लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 40 45 46 47 48 49 50। फिर से अभी अब फिर दाएं से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब दूसरा से दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. अब हम लोग थोड़ा सा निकालने का कोशिश करते हैं, तो हम 10, 16, फिर हम लोग कोशिश करते हैं 20 तक के हैं, जो हमको निकालना है 32 वाला 20 में करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. अब निकालिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. निकाल दो, बाकी निकाल दो. इसमें आपको कष्ट हो रहा किसी को? 20 में निकल पाएंगे? और कम करूं? 50 में भी कष्ट हो रहा होगा. 50 तक जा रहे हैं. ठीक है, जिसको जहां निकलता है वहां छोड़ो. देखते हैं किसको कितना आते हैं, फिर बताएंगे. 1-2 बार और चेष्टा करो, और लगातार करना है ना. हम निकलने का हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कैसा हो रहा? हो पा रहा है? ठीक है, आप लोग नोट करते रहो किसका कहां पर निकलता है, फिर उसे रेशो बना देंगे. ठीक है, फिर से एक बार और करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ठीक है जलंधर बंद। ठीक है, तुम करो, तुमको तो योग आता है, करो। यदि माथा सिर में दर्द होता है नहीं करना, कभी टाइम जलंधर बंद करके ना सिर में थोड़ा सा दर्द होता है। अगर जिसने कभी नहीं किया 16 64 32 तो उसका नहीं तो जलबंद उससे आराम ही हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग इतना रखते आप सीख गए होंगे कि जब हम लोग ले रहे 16 में और 50 तक जा रहे हैं, चलो ठीक है। और जब निकल रहे आपने नोट किया, मैंने थोड़ा आस्ते बोला जान के, क्योंकि उस टाइम सांस बहुत तेज निकल जाता है, तो इसलिए हम आस्ते ऐसे निकलते वक्त थोड़ा हौले निकलना, तो तभी आपका अच्छा लगे प्राणायाम होगा। बेस्ट प्राणायाम होता है जब हम लोग धीरे धीरे निकाल पाते। फुस करके निकालने से बेकार हो जाता है, फिर सांस का वो रेशा खराब कर देता है। इसलिए देखना 1 2 मैंने जान के लंबा किया, तो निकलते वक्त धीरे से निकालना है। अभी आप लोगों को ऐसे ही सिखा रहा है, हम लोग 16 ठीक ले रहे हैं और 50 मैंने जल्दी किया थोड़ा, और जो निकल 20 में हम निकल रहे हैं तो और भी आस्ते कर दिया, स्लो कर दिया, ताकि आस्ते आस्ते आप रेशो पे आ जाओगे, थकोगे नहीं, सिर में दर्द नहीं होगा, नींद अच्छा आएगा और भूख लगेगा खूब। अच्छा प्राणायाम भूख देता है और खाना को हजम करते हैं, उस रसायन जो हम खाने पे खाते हैं उसको जितना बॉडी होता खींच लेता है। प्राणायाम इसलिए बहुत जान के अच्छी तरह से करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी लय योग करेंगे, लय योग करेंगे और नॉर्मल लय योग आज करेंगे। आप 2-3 तो हम लोगों को बड़ा बड़ा कराया, कठिन वाला कराया, उसको आप लोग अगर जान गया, आपको याद हो गया तो करने का कोशिश करना। अब हम सीधा वाला करते हैं, आज एकदम जो नॉर्मल वाला है वो करते हैं। ठीक है, तो आप बैठो, आंख बंद करो और सामने बत्ती मत रखना, सामने कोई बत्ती मत रखो, उसमें आप लोगों को नहीं अच्छा नहीं लगेगा। आंख बंद करो, आप ब्लैकनेस रहेगा तो आपको उसमें अच्छा लगेंगे। तो आप हम लोग बैठे हैं जैसा अच्छी तरह से, खूब मन से खुश होके, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम किससे मिलने जा रहा है? आप यंग हो, आप 16 वर्ष की हो, आप 16-17 वर्ष के बच्चे हो या 21 साल के लड़का हो, लड़का लड़की हो, तो एक दूसरे से प्रेम करते हो, घर वाले मिलने नहीं देता है, और चुपके चापके कैसा करके आप जाते हो मिलने के लिए, उस समय आपका मन का कैसा खुशी खुशी होता है। ऐसा ही ध्यान जब हम करते हैं, हम अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, अपने जिस जो हमारा देवता है, जिनको हम अपने से ज्यादा प्रेम करेंगे, अपने से ज्यादा हर चीज से ज्यादा श्रद्धा भक्ति प्रेम करेंगे, उनके साथ मिलने जा रहे हैं। तो मन का अवस्था आपको वैसे ही होना चाहिए जैसे 21 साल का लड़का लड़की मिलने जाते हैं, यानी खुशी खुशी नाचते पीटते। उस समय उनके पास दुनिया में सब कुछ बेकार होता है, खाली प्यार ही अच्छा होता है। यहाँ पर भी साधन काल में साधक अपने इष्ट से, अपने आराध्य देवता से जब मिलने जाते हैं, उसका स्थिति भी एक प्रेमी, उन्माद प्रेमी की तरह होना चाहिए। उन्माद समझ लो, उन्माद अर्थात पागलों की तरह, दीवाने की तरह एक भक्त होना चाहिए, जो मेरा भक्ति, जो श्रद्धा, जो पूजनीय मेरा है, जिनसे जो मेरे ईश्वर है, जो मेरा इष्ट है, जिसको पाने के लिए व्याकुल है, उसको मिलने के लिए जा रहा है। तो वो अवस्था होना चाहिए। उस वक्त सब कुछ आनंदमय होता है। ये आनंद में कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तभी जाके मिलते हो और मिलने के बाद आनंद लेते हो। यहाँ भी जब उस भाव से आप चलोगे कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मन में उनसे मिलने का आशा, और चलने में गति भी होना चाहिए, चलने में गति और प्रेम से भरा हुआ हृदय, कि मिलने के बाद हम उनको क्या देंगे। हे गोविंद, हे ईश्वर, हे जिसको भी हम प्यार करते, समस्त वस्तु आपकी है, तमेव वस्तु तमेव समर्पण, ये सब वस्तु आपकी है, मैं भी आपकी हूँ। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा चिंताधारा, मेरे अंदर को सब कुछ जो आपने मुझे भोगने के लिए दिया इस शरीर के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको देने के लिए आ रही हूँ।
वही आपका, मुझे मन को रखिए कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो मिलने जाने का वो जो पिया मिलन की आस लिए हम लोग, पिया कौन है? ईश्वर। पिया कौन है? वो भगवती जिसको हम पाना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। पिया घर जा रहे हैं, पिया से मिलन के लिए जा रहे हैं। संग कौन जा रहा? सब सखिया, सब सखा सखी सब साथ मिल के पिया मिलन के जा रहे हैं। और मिलने के बाद हम वहाँ पर क्या, वो आनंदमय होगा, वो सृष्टि का स्वाद लेंगे जहाँ जिसका कोई आज तक उसको व्याख्या नहीं कर सकता है। तो चलिए हम लोग ऐसा आराम से बैठते हैं। और बार बार सिखाया, मैंने कहा कोशिश करो आजकल सुखासन में बैठने का। सुखासन आस्ते आस्ते एक पर पैर उठा के पद्मासन, आस्ते आस्ते दो पैर पद्मासन। तो पद्मासन में हमारा कुंडलिनी के जो मूलाधार में दबाव पड़ेंगे तो वो भुजंगी को सिर पे चोट पहुंचेंगे। तब आप जब उठोगे तो आपके साथ वो आप माता भी आपको मदद करेंगे। चलिए इस सब को चिंता करते भी रहिए, जो मैं कहते जा रहा हूँ शरीर के अंदर ये सब होना भी चाहिए। तो हम लोग अभी ध्यान करते हैं। तो चलिए हम चल रहे हैं कहाँ? माई के पास। माई से मिलने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। जिसको जो भाव है, ये मैं नहीं कहूँगी कोई आप भी काली को चिंता करो कि मेरे पास तो उनका सिवा कोई नहीं है, गुरु का सिवा कोई नहीं। आप लोग जिसको जो देवता को देवी को मानते हो, उन्हीं को ही, ईश्वर को, उन्हीं के स्वरूप को मेरा आत्मा उनसे मिलने जा रहा है। इसी भाव को बनाए रखिएगा, इसको नीचे मत आने देना, तभी पारा चमके ऊपर जाएगा। तो हम लोग बैठे हैं बहुत सुंदर एक विराट सागर में, माने पानी से भरा हुआ ओत पोत बड़े बड़े लहर के साथ बीच में एक सुंदर सा द्वीप है, बहुत सुंदर द्वीप है। और उस द्वीप में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधा, फूल फल, सुगंध सब कुछ है। और पक्षियाँ, कोयल बोल रहे हैं, पक्षियाँ गाना गा रहे हैं, चू चू कर रहे हैं, बहुत सुंदर। कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। नीला आसमान ऊपर छतरी की तरह हमारा ऊपर है, नीचे जल है जो बड़े बड़े लहरें के साथ नाच रहे हैं। उसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हम बैठे हैं। जो उस द्वीप के अंदर बैठे हैं वो बीचों बीच बैठे हैं। चारों तरफ महाप्रकृति अपने सुंदरता बिखराए आपको स्वागत कर रहे हैं। छोटे छोटे खरगोश और ऐसा कबूतर, सुंदर सुंदर पक्षी सब आपका आसपास चूग रहे हैं। कुछ हरी हरी घास है, कहीं गहरी है, कहीं हल्की है, और कहीं सफ़ेद फूल है, कभी लाल फूल है, चारों तरफ फूल है, उसका सुगंध है। आपका मन उसके अंदर तैर रहे हैं और आप है। आप मिलने, आपका जो शरीर है इससे आपको निकल के मन के अंदर आप जा रहे हैं, आप अपने भीतर अंदर घुस रहे हैं। तो अपने भीतर जाते जाते आप क्या देख रहे हैं? हम जहाँ पर बैठे हैं, अर्थात जिस शरीर के अंदर हम बैठे हैं, शरीर भी मिट्टी का ही ढेर है। यही वो द्वीप है जिसमें सब सुंदर है, वो सब कुछ सुंदर है। जैसे हम अपने अंदर सुंदरता देखते हैं, ऐसे ही उस जिस द्वीप में हम बैठे वो बहुत सुंदर, महासुंदर एक द्वीप है, वो बैठे। हमारा शरीर भी इसी तरह से है। और हमारा शरीर में से जैसा आस्ते आस्ते मिट्टी स्वरूप मांस, हड्डियाँ, नाड़ियाँ सब पिघल पिघल के उस पानी के अंदर जा रहा है। पानी जो बड़े बड़े पानी के लहरें हैं उसको मार रहे हैं, उसको पिघल के जा रहा है। तो ऐसे ही जिस मिट्टी में हम बैठे हैं वो लहरें आके उसके ऊपर मारते हैं, चारों तरफ से मारते हैं, वो मिट्टी गल 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 के उसके अंदर मिल गया। तो मिट्टी जो था, माटी जो था, माटी मिले जल में, माटी जल में मिल गया। और फिर भी मैं हूँ, शरीर नहीं है, मेरा मांस नहीं है, चमड़ा नहीं है, हड्डियाँ नहीं है, नाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, सब चला गया। फिर भी मैं तो हूँ, मैं हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं निर्विकार ब्रह्म हूँ। मेरे अंदर वही शक्ति है जो महाशक्ति महाप्रकृति में है, उसका अंश हूँ मैं हूँ, मैं हूँ। मेरे अंदर जल के अंदर आ गया हूँ मैं। अब तक मैं अपने मिट्टी में थी, अब मिट्टी छोड़ के मैं अब जल में आ गया हूँ।
जल के अंदर वो मैं जो निर्विकार है, निर्विकार ब्रह्म है, वो जल के अंदर है। जल तैर रहा है, जल अभी भी ऐसे ही लहरें नाच रहे हैं। आस्ते आस्ते वो जो लहरें नाच रही है उसके भीतर से भीषण आग उतर आए हैं। जो आपका सांस चल रहा है ये भी अग्नि है। हर्षण चल रहा है, बाहर आ रहा है बोल के हम वृद्ध हो रहे हैं, हम मर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जो जल है, जल के अंदर अग्नि है, तप है। वो तप उस अग्नि को, अब अग्नि जो बाहर आ गया, जल के ऊपर आ रहा है, हम जल में तैर रहे हैं और चारों तरफ से अग्नि आया है। अग्नि बहुत तेज आया और आते आते सारा जल को उबलने लगा। जल भाप बन रहा है। आस्ते आस्ते जितना जल था, जल हवा बिल्कुल खत्म हो गया। जल नहीं बचा, जल नहीं बचा। अरे मैं फिर भी हूँ, मेरा प्राण, मेरा हर चीज से हट गया। शरीर तो चला गया था, हड्डी चला गया, मांस चला गया, नाड़ियाँ चला गया। आप अंदर जिस जल में मैं तैर रही थी वो जल भी चला गया। जल नहीं है, आप खाली अग्नि है। जल जो है अग्नि का भीतर चला गया। अब मैं अग्नि का भीतर हूँ। अपने को महसूस करो कि अब मैं अग्नि के अंदर हूँ। मेरा शरीर में अब 2 धातु से खत्म हो गया। मेरे शरीर से मिट्टी चला गया, मेरे शरीर से पानी चला गया, फिर भी मैं हूँ। मैं कौन हूँ? वही महाप्रकृति हूँ। फिर भी मैं हूँ। मैं किस में हूँ इस वक्त? अग्नि में हूँ। अग्नि में स्थित हूँ। अग्नि जीवन होता है। जब तक शरीर में प्राण होता है वही दीपक है, वही आग है। वो आग में स्थित हूँ मैं, और चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है और भयंकर गर्मी है, और मैं आग में स्थित हूँ। आग में भीतर में बैठ के हम तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अभी भी वहीं बैठ के तपस्या कर रहा हूँ। कहाँ? अभी भी मैं हूँ। मैं थी मिट्टी में, मिट्टी गई जल में, मिट्टी जल में चला गया, जल अग्नि में चला गया, अग्नि में अब मैं बैठा हूँ। अब अग्नि आस्ते आस्ते बहुत तेज हो गया, तो अब अग्नि को अंदर से पवन आ रहा है। दूर आकाश में से पवन आ रहे हैं। पवन आए, आस्ते 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 अग्नि को लेके जा रहा है और अग्नि को निकाल के ले गया। आस्ते आस्ते अग्नि चला गया। अग्नि चला गया पवन में। आप अग्नि चला गया पवन में, अग्नि चला गया। अब हम कहाँ हैं? फिर भी हम हैं। हमारे अंदर महाप्रकृति वहाँ प्रस्तुत है और हम उन महाप्रकृति के साथ अभी भी हैं। नहीं शरीर, नहीं हमारा पास जल, नहीं हमारा पास अग्नि। अब हम किसमें हैं? वायु में हैं। वायु कौन है? हमारा श्वास। हमारा शरीर में जो सांस चल रहा है ये जीवन की तरह, जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम मिलते जुलते हैं, काम करते हैं। अभी पवन है, हम पवन के साथ है। अब हम कहाँ हैं? है माटी में नहीं है, जल में नहीं है, अग्नि में नहीं है, अब पवन में है। पवन गतिमान है। पवन जा रहा है अग्नि को लेकर, हम उस पवन के साथ है और हम भी जा रहे हैं पवन के साथ। पवन एक जगह में खड़ी नहीं होते हैं, पवन दौड़ते हैं। अब हम जा रहे पवन के साथ। पवन कहाँ जा रहा? ऊर्ध्व की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम भी कहाँ जा रहे? पवन के साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आस्ते 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 वो पवन हमको लेके मूलाधार में घुस रहे हैं। देखिए वो जो जिसमें हम बैठे हैं पवन की यान में, जिसको कोई सूरत नहीं, जिसका वर्ण क्या है? हल्का मेघ वर्ण है, ऐश कलर है, तो ग्रे रंग है। वो पवन के साथ हम कुल कुंडलिनी का मूल देश में पहुंच गया। मूल से हम अब ऊपर को, हमारा पंचधातु में शरीर चला गया आकाश में। आकाश ऊपर है, पवन आकाश की तरफ जा रहे हैं। अब हम आकाश की तरफ जा रहे हैं। हम मूलाधार में पहुंचे। मूलाधार से वो जो सिंगारा है, मूल सिंगार मूल जो है सिंगारा की तरह, मैं सिंगारा का नोक पे पहुंच गया हूँ। और मेरा अस्तित्व अब क्या रह गया? बिल्कुल एक सरसों बराबर और सुनहरी है, बहुत चमकदार है, बहुत सुंदर है। जो पवन के यान में बैठा है, पवन ऊपर की तरफ जा रहा है और पवन बैठ के जा रहा है। जैसे पीत बॉल है, पानी के ऊपर रख दीजिए, कैसे ऊपर को जाता है, वैसे ही आपका हम जो प्राण हमारा वैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है। वो ऊपर खींच के लेके जा रहा है। हम मूलाधार से अंदर को गया और उसमें बीच में गए। वहाँ पर गणपति बाबा बैठे हैं। गणपति बाबा को प्रणाम किया तो उन्होंने हमें रास्ता दे दिया। इधर बैठा इंद्र भगवान, दोनों ने अपने रास्ता दिया, उनको प्रणाम किया। ऊपर को आए। ऊपर के कौन बैठे हैं? रुद्र स्वरूप ब्रह्मा पितामह रुद्र का स्वरूप में बैठे हैं। उनके साथ उनका शक्ति डाकिनी अर्थात महा सरस्वती
सर्व ज्ञान लिए दोनों बैठा है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, सरस्वती उसको बड़ा करते हैं। तो हम दोनों को बीच में गया, उनको प्रणाम किया। अभी अभी हम ट्रायंगुलर के बीच में, उस सिंगारा के बीच में बैठे हैं। वहाँ पर कुंभ है, महाकुंभ, अमृत कुंभ है। हम उसको भीतर जो है, हम ऊपर जो है माता भुजंगी है, वहाँ प्रकृति बैठी है, बगलामुखी बैठी है, जो वज्र नारी है। हम लोग सुषुम्ना से अंदर जा रहे हैं। वो भीतर में सुषुम्ना है, जो हमने हमको सिखाया था, अभी बताया था। सुषुम्ना जो हमको आकाश तक, पवन उसमें घुस गया, और पवन घुस के उसको 3 हिस्सा कर लिया, और पवन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो आप पवन जो है आपको इस समय हम लोगों को नारी देखिए, सूर्य नारी चल रहा है पिंगला, और सूर्य नारी के साथ साथ वो पवन उसी रास्ते से ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक एक स्वादिष्टान में पहुंचा। उनमें से वो हम लोग सेंटर में है, वो सेंटर ऊपर की तरफ बिल्कुल मारकरी की तरह ऊपर को जा रहे हैं। हमारा कि पवन ऊपर जा रहे थे। पवन कहाँ जा रहा है? आकाश की तरफ जा रहा है। हम आकाश की तरफ जा रहे हैं। तो हम स्वादिष्टान से उठता हुआ हम मणिपुर में पहुंचे। मणिपुर से हम वहाँ स्वादिष्टान में हमने भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया को प्रणाम करिए, और उनको वाहन को देखिए, मकर है, उनको प्रणाम करके सबने रास्ता दे देते हैं आपको, आप अंदर जाइए। हमेशा साधन काल में सबको नमस्ते प्रणाम करते हुए जाइए, विनय होते हुए जाइए। फिर आप मणिपुर में पहुंचा। मणिपुर में आपने वहाँ पर अपने उनको प्रणाम किया, रुद्र को और महाशक्ति को। उसको ऊपर आप आए। अनाहत में पार्वती और शिव महाप्रेम अवस्था में बैठे हुआ है। हृदय स्तन है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जिसे उन्होंने सृष्टि कर रखा। हम वहाँ से पहुंचे, वहाँ उनको दोनों को प्रणाम किया। सीधा हम लोग विशुद्धा में पहुंचे। विशुद्धा में हम उनको प्रणाम किया, और शिव शक्ति को वहाँ भी प्रणाम किया, रुद्र को। उसके बाद हम ललना को बाईपास करता हुआ, देखिए लाल वर्ण का एक पुष्प दूर दिखाई दे रहा है, उसको पास करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम आया, आस्ते आस्ते चढ़ के पवन जो है प्रेक्षागृह में आया, जो हमारे नाक के ऊपर जगह है, वहां तक पवन आता है। आने के बाद पवन आकाश में मिल जाता है, अर्थात हम लोग आकाश की तरफ, अपने अंतरिक्ष की तरफ, अपने शरीर में जो अंतरिक्ष है उस अंतरिक्ष की तरफ आप जा रहे हैं। अंतरिक्ष की तरफ जाने के लिए आपको आज्ञा चक्र में वहाँ आधा नारीश्वर इतर नामक शिव को और उनकी शक्ति को प्रणाम करना है। उनको चरण में प्रणाम करने के बाद आज्ञा मांगिए। आज्ञा देह प्रभु ने आज्ञा दे दिया। दो वहाँ पर पार्वती या शिव दोनों थोड़ा जगह बनाता है, उनके बीच में से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जना हम ऊपर सुषुम्ना में आज थे, अभी भी सुषुम्ना में है। सुषुम्ना से हम उधर से पिंगला से जो सूर्य नारी से चले थे, अब हम सुषुम्ना में दोबारा प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने के बाद तो दूध धारा है, देखिए कितना सुंदर दूध धारा है। और अब एकदम श्वेत वर्ण का दूध धारा, एक तरफ हरे रंग है, एक तरफ पीले रंग है, और मध्य सुषुम्ना है। इन तीनों को बीच में से हम लोग बीच वाला सफेद से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर द्वादश में हम पहुंचे, सबको बाकी तीनों को छोड़ के द्वादश में गुरु बैठे हैं। समस्त सिर के अंदर जो है एकदम गोल करके गुरु महाराज विराट रूप में बैठा, विराट स्वरूप है इनका गुरु के। यहाँ पर गुरु से बड़ा कोई नहीं है। वहाँ गुरु दक्षिण पैर को नीचे करके बैठे हैं। हम उनको प्रणाम किया, दक्षिण चरण में प्रणाम किया। उन्होंने हमको रास्ता दिया आगे को, हम आगे को जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? आकाश की तरफ, क्योंकि पवन को आकाश में जाना था, हम भी आकाश की तरफ जा रहे हैं। आस्ते आस्ते हम लोग सहस्रार को अंदर जो 2 छेद दिख रहा है उसमें से एक छेद अंदर से ऊपर क्यों आए अपने अंतरिक्ष को पहुंचा, तो अपने आकाश में पहुंच गया। तो इसमें लय में हम क्या करा, हमारा माटी मिले जल में, जल मिले अग्नि में, अग्नि मिल जाता है वायु में, वायु मिल जाता है आकाश में। ये हमारा सब धातु, हमारा शरीर का जो अस्तित्व था सब समाप्त हो गया। अब हम एकमात्र आत्मा ओशो है, हमारा चैतन्य अब उस एक छेद में चलता हुआ अपना अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अब यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और यहाँ पर जाप करेंगे निश्चिंत होके। हम अब अपना जीवा को नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, इंद्रिय कोई नहीं है, फिर भी
छठा इंद्रिय में अर्थात हम ऊपर है इस वक्त, छठी इंद्रिय के पास हम लोग अभी इस वक्त है। यहाँ खाली पीले है, इस वक्त पीले है और नीले के साथ पीले, पीले के साथ थोड़ा सा मैजेंटा है। इस जगह में हम पहुंचे, अंधकार का एक बहुत बड़ा चतुष्कोण है, उसमें बीच में हम बैठ गए हैं। और यहाँ पर आप दीक्षा मंत्र, जिनको दीक्षा मंत्र मिला वो दीक्षा मंत्र जाप करो, जिनको दीक्षा नहीं हुआ अब तक वो ओंकार का जाप करो। ओम, कल मैं बताया था, ओम ओम ओम, वो जपो। और जिसको दीक्षा मंत्र है वो यहाँ बैठ के निश्चिंत मन से थोड़ा देर वो जाप करिए। देखिए आज सुंदर से यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको स्थिति ऐसा सुंदर आया है बोल के। आज हम देखेंगे यहाँ पर भगवान विष्णु बड़ा सुंदर स्वरूप, पीले के वस्त्र पहने, नीले वर्ण की, और सारा शरीर में सोने का गहना पहना हुआ है। एक अंग में लक्ष्मी जी है उनका, और उनको लेके वो देखिए कितना सुंदर बैठा दिख रहा है। आपको भी दिखना चाहिए, बड़ा सुंदर दिख रहे हैं। नीले वर्ण के भगवान विष्णु, पीले कपड़े पहना है, पीले गहना पहना हुआ, मुकुट पहने हुआ है, उनके साथ गुलाबी रंग से सजी हुई लक्ष्मी उनकी बाएं कोर में, उनको गोद में ये सब बैठी हुई है। बड़ा सुंदर स्वरूप दिख रही है। अब उनको आप जाप करिए। देखिए अंतर लक्ष्मी मिला आज हम लोगों को। अंतर लक्ष्मी क्या होता है, वहां पर आनंद होता है, बाद में बताएंगे। तो उनके चरण में आप जाप करिए, 5 मिनट 6 मिनट जो भी हम लोग अभी कराएंगे आपको करिए, जाप करिए। देखिए कितना आनंद आता है, बहुत सुंदर है। उनकी कृपा है विष्णु भगवान की आज।
आस्था से आप भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रणाम करिए। उनका बड़ा कृपा, देखिए कितना सुंदर ग्लो कर रहे हैं अभी भी उनका स्वरूप कितना सुंदर है। देखिए चारों तरफ से कितना सुंदर रोशनी निकल रहा है, पीला और नीले, और देखिए कितना सुंदर रोशनी। और आप उनको प्रणाम करिए, वो आस्ते आस्ते मिल रहे हैं। हम लोग जाप समाप्त कर दिया, उनको नमस्कार करके आप लोग दूसरा जो साथ में दूसरा जो रास्ता है उसमें से हम लोग अब दोबारा नीचे को आएंगे। नीचे को सीधा से नीचे को आए, अंतरिक्ष नीचे की तरफ आ रहे हैं। आते हुए हम लोग अपने गुरु को द्वादश में प्रणाम करो। गुरु जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके हम आज्ञा में आते हैं। आज्ञा में भगवान से प्रणाम करते हैं और अपने प्रेक्षागृह में फिर आएंगे। पवन साथ चल रहे हैं हमारे, आस्ते आस्ते पवन हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। वहाँ पर हम पहुँचे, उसके बाद हम लोग अनाहत में पहुँचे, उसके बाद हम लोग मणिपुर में पहुँचे। आदि के साथ साथ रंग आज मणिपुर में कितना सुंदर नीला वर्ण है, देखिए कितना सुंदर सिरों से रंग आ रहे हैं। और हम उसमें से चक्र में से नीचे की तरफ जा रहे हैं। आस्ते आस्ते दो तरफ हरे और एक तरफ हरा रंग, एक तरफ पीला रंग, और नीले भी साथ साथ है। हम एक एक गांठ जैसे अंदर को जा रहे हैं। और आस्ते आस्ते हम लोग स्वादिष्टान में पहुंचे, जहाँ जिन्होंने आज हमें दर्शन दिया स्वादिष्टान की, वो देवता माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जो स्वादिष्टान में बैठते हैं। सबसे कठिन स्थान है हम लोगों का, द्वितीय स्थान। इनको यहाँ प्रणाम करिए, इनका कृपा आज आप लोगों को मिला है। और आस्ते आस्ते उनको प्रणाम करते हुए मूलाधार में हम पहुँचे। वहाँ पर रुद्रों को प्रणाम करिए, डाकिनी शक्ति को प्रणाम करिए। हमें ज्ञान दे, भक्ति दे, श्रद्धा दे, हमारा जीवन में ईश्वर की कृपा दे। और आस्ते आस्ते हम फिर वही ट्रायंगुलर त्रिकोण में पहुँचे। त्रिकोण में पहुँच के वहाँ पर एक पास से हम लोग अंदर नीचे को आ रहे हैं। और नीचे को आके हम फिर आस्ते 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 हम अपने अग्नि स्वरूप शरीर में प्रवेश किया। अग्नि शरीर में प्रवेश किया, वायु अग्नि में आया, फिर अग्नि, फिर जल में गया, जल फिर माटी में गया, माटी स्थित हम फिर अपने शरीर में प्रवेश किया। और वही दीप में हम बैठे हैं, जो हमारा शरीर है उसमें हम बैठे हैं, जिसमें सब सुंदर है। और अभी भी हम सुंदर से ही मिल के आए हैं। तो हम लोग दोबारा वापस आए। हमारा नारिया, हमारा चैतन्य, हमारा जितना वो थे नारी लोग के साथ जो चेतना के साथ जो भी कुछ हम लोगों को शरीर के अंदर प्राप्ति की होती है, इन सब मिले। हम वृक्ष में मिले, भगवान से मिले, इन सबका आनंद है। आनंद के साथ हम लोग आस्ते आस्ते अब आंखें खोलेंगे। आँख खोल के हम लोग अपने दोनों हाथों को मसलेंगे। और हम इसको अपने शरीर में वापस लेंगे। सोचेंगे कि हमने जो अंदर अभी ध्यान करके जो शक्ति को प्राप्त किया, ये अब हमारा ऐसा करके अपने अंदर जा रहा है। 3 बार करना चाहिए। हरिओम। हम लोग आज जो साधना किया, इसमें हम लोग कितना आनंद पाया।